Hello. Good afternoon, students. So we are almost about to end this chapter, determinants. So let us go through few questions. Okay. Now here we have using the property of determinants. So first of all, tell me, are you able to hear me properly? Is my voice clear? Yes, sir. Okay. Now any news you have got about निधि मैम? कुछ पता चला कब कैसी है तबीयत उनकी? Even I don't have any idea as of now. Let's pray for her speedy recovery. So yesterday we solved, I think, question number 2 and question number 3 was also solved, right? So we are in question number 4. So let us solve question number 4. So here we have 111 BC CA AB and A into bracket B plus C. I can expand, इसको expand कर देता हूँ, AB plus AC, BC AB and AC BC. So this is my left hand side. Now देखो अब सोचना है AB BC AC, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो यहां पर मुझे AB BC AC मिलेगा. हियर ऑल्सो AB BC AC मिलेगा. हियर ऑल्सो AB BC AC मिल जाएगा. सो व्हाट आई विल डू कि कॉलम नंबर 3 को मैं चेंज करूंगा. कॉलम 3 में आई विल ऐड 1 टाइम ऑफ कॉलम नंबर 2. ऐसा क्यों करना है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा. ओके, सो 111 कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, कॉलम 2 में भी कोई चेंज नहीं है. BC AC AB, बट यहां पर देखो क्या हो जाएगा, AB BC AC, AB plus BC plus AC. Here also AB BC AC, and here also AB BC AC. अब आप सोचोगे सर उससे भी क्या फायदा हुआ, बट here we can take something common. इसमें से कुछ कॉमन हम निकाल सकते हैं. We can take common as AB plus BC plus AC. Okay, we know one property कि हम common multiple निकाल सकते हैं from any row or column. So first column is 111, second is BC AC AB, but here what should I write? I will write 111 because मैंने ये कॉमन निकाल लिया है. सो अब आप देख सकते हो कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो वैल्यू बिकम्स व्हाट, 0. ओके, सो AB प्लस BC प्लस AC इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. क्यों 0? रीजन आई विल राइट एज कॉलम 1 and column 3 are identical. ये प्रॉपर्टी है. If two columns or two rows are identical, then value becomes 0. So is equal to 0. और right hand side में वही था. So is equal to right hand side. So I hope you are clear about this. Raise your hand if you are clear. So without expansion,
यूजिंग द प्रॉपर्टी, इसकी प्रैक्टिस करना. ओके, इफ यू प्रैक्टिस देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए प्रॉपर वे. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Here I have question number 5. Question 5 थोड़ा सा लेंदी है, so स्टार मार्क करो and ध्यान देना. So we have question number 5. लेफ्ट हैंड साइड भी बड़ी है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b plus c plus a plus b. Then QRRP PQ, then YZ ZX XY. Okay. Now look here, BC, यहाँ CAAB, ये तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे B भी 2 बार मिलेगा, A भी 2 बार मिलेगा, C भी 2 बार मिलेगा. So I will write row number 1 changes to row number 1 plus 1 time of row 2 plus 1 time of row 3. मैंने कहा था कि we can add rows like this. इससे पहले ये प्रॉपर्टी हमने यूज की थी. So here B plus C plus C plus A plus A plus B, तो can I say मुझे तो ऐसा मिल जाएगा 2A plus 2B plus 2C. कॉलम 1 में, रो 1 में चेंज है, रो 2 एंड रो 3 विल रिमेन एज इट इज. तो पहले वो मैं लिख देता हूं, A plus C R plus P Z plus X AB PQ XY as it is. अब यहां पर देखो क्या होगा. If I am adding row 1, row 2 and row 3, so इसमें होगा 2 times Q, 2 times P, 2 times R. So 2P plus 2Q plus 2R. यहां पर हो जाएगा XYZ 2 times. So 2X plus 2Y plus 2Z. So in next step what I can do, मैं इन सभी में से 2 कॉमन निकाल सकता हूं. ओके, नाउ 2A plus 2B plus 2C. शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, 2 times of A plus B plus C. यहां पर 2 times of P plus Q plus R. Here 2 times of X plus Y plus Z. Okay, C plus A, row 2 as it is. So शॉर्ट में मैंने क्या किया, रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड कर दिया एंड 2 कॉमन निकाल दिया बाहर. सो आफ्टर दिस मुझे कुछ वैल्यूज छोटी करनी है. सो लुक हियर, A plus B, नीचे यहां पर है A plus B. सो मैं माइनस कर सकता हूं. सो आई कैन डू लाइक दिस के रो नंबर 1 में से माइनस करूंगा रो नंबर 3. So row 1 will change. So row 2 as it is, row 3 as it is, and A plus B plus C minus A minus B. row 1 में से row 3 लेस होगा. So A and B निकल जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ C. यहां पर PQR में से PQ निकल जाएगा, बचेगा R. XYZ में से X और Y निकल जाएगा, बचेगा क्या, Z. Now look here,
C प्लस A एंड ऊपर भी मेरे पास C है। सो रो नंबर 2 में से मैं रो नंबर 1 लेस कर दूंगा, C प्लस A माइनस C। सो एक ही लेटर बचेगा। अब आप सोचोगे सर आप ये सिंगल लेटर क्यों कर रहे हो? सो लुक इनटू योर राइट हैंड साइड। इन राइट हैंड साइड आप सबके पास 2 तो बाहर ऑलरेडी है, अंदर एक एक लेटर ही होना चाहिए। सो वी नीड टू फोकस लाइक दिस, एक एक लेटर लॉग होना चाहिए। CRZ आप देख सकते हो, CRZ मुझे मिल गया है। ओके, सो ड्यू टू दिस रीजन मैं ऐसा कर रहा हूं। सो 2 तो ऑलरेडी है, रो 2 में से रो 1 माइनस होगा। सो रो 1 एज इट इज, रो 3 एज इट इज। And look here, C plus A minus C. So A, R plus P minus R. तो बचेगा क्या? P. Z plus X minus Z. So बचेगा सिर्फ X. Now अब रो नंबर 3 में से एक ही लेटर चाहिए मुझे। So what I will do, रो नंबर 3 में से रो नंबर 2 मैं माइनस कर दूंगा। So row 1 and row 2 will remain as it is. C, R, Z, A, P, X. Look here, A plus B minus A. P plus Q minus P. बचेगा Q. X plus Y minus X. बचेगा Y. So मुझे ये वैल्यू मिली है। नाउ आई विल कंपेयर विथ राइट हैंड साइड। राइट साइड में देखो A B C इस वे से है। ओके, सो A B उसके नीचे C आना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल इंटरचेंज। A मुझे ऊपर चाहिए, सो आई विल इंटरचेंज रो नंबर 1 विथ रो नंबर 2। तो A ऊपर चला जाएगा। सो इज इक्वल टू -2। कोई मुझे बताएगा व्हाई आई एम राइटिंग -2? बिकॉज व्हेन वी इंटरचेंज एनी 2 रोस और कॉलम साइन चेंज हो जाती है। ओके, सो ध्यान रखना है। सो -2 आई विल राइट, साइन चेंज होगी। सो रो 1 की जगह पर रो 2 लिखना है। सो रो 1 इज CRZ, वो रो 2 में लिखेंगे। एंड रो नंबर 1 की जगह पर रो नंबर 2। सो ये रो 2 थी, APX 1 में लिखेंगे। BQY was already there. सो यहां A आ गया। अब मुझे इन दोनों को चेंज करना है। सो मैं यहां पर लिखूंगा इंटरचेंज रो नंबर 2 with row number 3. So again if I interchange, then minus of -2, basically ये +2 बन जाएगा। So let me do one thing, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं +2। So row 1 as it is APX, CRZ रो 3 में जाएगा, BQY रो 2 में आएगा। So I got these 2 times of APX, BQY, CRZ. So देखो 2 times of APX, BQY, CRZ. So exactly मेरा काम हो गया। This is the right hand side, hence proved. Okay, so याद रखिए जब कोई भी दो रोज इंटरचेंज होती है तो साइन चेंज होती है, लेकिन ऐसा 2 बार करोगे
So again you will get the same sign. So raise your hand if you are clear about this question. Yes, Lavanya and Siddhi, are you clear? Okay, good. So I hope you are also writing along with me. Then we have next question, question number 6. We have left hand side like 0a minus b, minus a 0 minus c, and b c 0. This is my left hand side. Now what I will do, I will take -1 common from each row. तो क्या हो जाएगा, -1 -1 -1, हर रो में से मैं -1 कॉमन निकाल रहा हूं. ओके, सो साइन चेंज हो जाएगी, 0 -a and b. Here it will be a 0 and c. Here it will be -b -c and 0. देखो कोई भी एक रो में से यू कैन टेक -1 कॉमन, तो साइन चेंज हो जाएगी. ऐसा मैं 3 बार कर रहा हूं, इसलिए -1 -1 सभी रो की साइन मैंने चेंज कर दी. सो -1 इंटू -1 +1, तो इन अदर वर्ड्स मैं सिर्फ -1 ही यहां पर लिखूंगा तो चलेगा. ओके, सो अब एक काम करते हैं, यहां पर आई कैन इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स. वी नो दैट सभी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम. सो 0a minus b कॉलम की रो, सेकंड कॉलम -a0 minus c, and third column will become third row bc0. एंड मान लेते हैं लेट डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट, तो ये जो पूरा है उसको मैं डेल्टा मान लेता हूं. सो लुक हियर, नाउ इफ यू कैन कंपेयर दिस 0a minus b, 0a minus b, -a0 minus c, bc0. So this is nothing but the delta. Okay, so यहां मैंने शुरुआत की थी डेल्टा इज इक्वल टू, ये था -1, और फिर से मुझे क्या मिला, डेल्टा मिला. So value of determinant is minus the value of determinant. So it means ये अगर साइड चेंज होगा तो डेल्टा प्लस डेल्टा will be 0. 2 times delta is equal to 0. So delta is equal to 0 by 2 is equal to 0. And वही तो था राइट हैंड साइड पर. पूछा क्या था कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 प्रूव करो. सो मैंने यहां पर देखिए 0 प्रूव किया. एक और बार मैं रिपीट करता हूं क्या करना है, इट्स वेरी इजी. ऑलरेडी जो डिटर्मिनेंट था वी अज्यूम दैट कि वो डेल्टा है, देन -1 वी टेक फ्रॉम ईच रो या ईच कॉलम वॉट एवर इट में बी, then ultimately sign will change हर एलिमेंट्स की. then here I have minus sign, but ये पूरे डिटर्मिनेंट की रोस एंड कॉलम्स अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो वैल्यू रिमेन्स सेम, दैट इज अ प्रॉपर्टी, वैल्यू रिमेन्स द सेम.
सो इफ आई इंटरचेंज रोस एंड कॉलम्स तो घूम फिर के मुझे डेल्टा ही मिला. सो डेल्टा इज इक्वल टू -1 ऑफ डेल्टा. ओके, डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू. So now delta equal to minus delta, simple mathematics. So 2 times delta is 0. So delta is 0 by 2, which is 0. So raise your hand if you are clear about this. Okay, ये exercise में आपको हर question को practice करना है. Only then you will be able to understand. And let me share with you कि एक बार मिस्टेक हुई, दूसरी बार मिस्टेक है, तीसरी बार. सो पीछे पड़ जाओ, देन इट बिकम्स इजी. तो shall we move on to the next one? Okay, we have question number 7. So we have this determinant minus a square, then AB AC, then AB minus B square BC, then AC BC minus C square. And this is my left hand side. Okay, right side में मुझे expand करना पड़ेगा, but look here, left hand side is this. Now हम इसमें देखते हैं कि what we can do. यहां पर B नहीं है. अच्छा, इन सभी में से आप देख सकते हो A कॉमन निकाला जा सकता है. From here I can take B common and from here I can take C common. तो A, B, C common निकालते हैं. So this first row will become minus A, B and C. A common निकाल दिया. From here if I take B common, then it is A minus B and C. And from this I will take C common, तो बचेगा A, B and minus C. So I hope you are able to understand this thing. Now अब क्या होगा, देखो भले इन्होंने कहा है विथआउट एक्सपांशन, लेकिन जब ऐसा है मीन्स ओनली फ्यू टर्म्स आर देयर, तो मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा. और एक्सपांड करने से पहले यहां पर ध्यान दो, मैं कोशिश ये करूंगा कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में 2 0 आ जाए. ओके, इफ आई गेट 2 zeros तो एक्सपांशन बहुत इजी हो जाता है. सो व्हाट आई विल डू, ध्यान से समझो, ये ए को मुझे 0 करना है. सो व्हाट आई कैन डू कि रो नंबर 2 changes to row number 2 plus 1 time of row number 1. okay, so क्या हो जाएगा, रो 2 चेंज होगा. सो रो 1 एज इट इज minus A, B, C, row 3 as it is A, B and minus C. अब यहां पर रो 2 प्लस रो 1, so A minus A 0, minus B plus B 0, C plus C it is 2C. so ये 0 हो गया. अब एक और हम काम करते हैं कि रो नंबर 3 changes to row number 3 plus 1 time of row number 1. So row 1 as it is minus A, B, C. Row 2 as it is 0, 0, 2C. And here this plus this, row 3 plus row 1. So it is 0. B plus B, 2B. Minus C
plus c, it will be 0. So याद रखिए what is my target, मैं कोशिश ये करता हूं कि ये 0 हो जाए. ओके अगर ये 0 ये 2 हो जाते हैं तो इफ आई एक्सपांड तो क्या होगा, दिस वैल्यू इनटू दिस, सिर्फ इतना ही बचेगा. मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूं कि अगर ये 2 0 होते हैं तो दिस इनटू दिस डिटर्मिनेंट उतना ही होगा, बिकॉज b इनटू जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 0 है, सो इट विल सर्व नो पर्पस. c इंटू ये 4 मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 0 है तो नो पर्पस. इट मीन्स ये 2 0 करने से दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू बस एक्सपांड करने से आंसर मिल जाएगा. सो ए बी सी वॉज ऑलरेडी देयर, ए बी सी वॉज ऑलरेडी देयर. अब एक्सपांडिंग, अब मैं एक्सपांड करूंगा. ए बी सी ऑलरेडी था, नाउ इसको एक्सपांड करेंगे तो माइनस ए इंटू दिस डिटर्मिनेंट, वो है 0 2c 2b एंड 0. देन b, ये पूरा लिखता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. b की जगह पर माइनस b इंटू 1 डिटर्मिनेंट, सो दिस इज 0 2c 0 0 and then I have c plus c into these values 0 0 0 2b. so please note ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने क्यों लिखा, so that you can understand कि ये 0 0 होने से आपका जो मेहनत है वो बच जाएगा, यानी थोड़ा जल्दी आंसर आएगा. कैसे, ये जो 2 zeros है वो यहां पर भी आ गए और यहां पर भी आ गए. so hence you need not write. so a b c was already there. ये था माइनस a इंटू ये है 0 माइनस 2b इंटू 2c. सो बेसिकली ये बन जाएगा माइनस 4bc. ये भी 0 है और ये भी 0 है, सो ये हो जाएगा ए बी सी इंटू प्लस 4 ABC. So we got the answer 4 times a square b square c square. और वही कहा था राइट हैंड साइड में 4 टाइम a square b square c square. So is equal to right hand side. So याद रखिए your method may change, but conceptually if you are clear then you will get the answer. So raise your hand if this question is clear. Akshat, Anuj and Lavanya, what about you? Okay, good. Now we have this question number 8, using the properties of determinants in exercise 8 to 14 show that. Now यहां पर कहा है using the properties, without expansion नहीं कहा है, इसका मतलब है we can expand, in the end we can expand. और याद रखिए जब डिटर्मिनेंट के राइट हैंड साइड में we don't have determinant, इसका मतलब एक्सपांशन करने से ही ये वैल्यू सिंप्लीफाई होगी, जैसा क्वेश्चन 7 में था. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में we have 2 questions. सो मैं ये ट्राई करता हूं, 8 का 1 होमवर्क में देता हूं. सो क्वेश्चन नंबर 8,
second question, we have 1 1 1, then A B C, then A cube B cube C cube. अब देखिए मेरी स्टाइल क्या है, मैं ये जो 1 1 1 है वो उसको रो वाइज ऐसे कॉलम 1 में लिखूंगा। ओके, 1 1 1 कॉलम 1 में लिखूंगा। या फिर एक दूसरा तरीका है कि एक काम करते हैं, ये भी इजी तरीका है, आप है ना इसको और इसको जीरो कर दो। अगर जीरो कर दोगे तो एक्सपांशन में सिर्फ यही बचेगा एक्सपांशन। सो कैसे जीरो करना है ये 1 को, तो आई विल राइट कॉलम नंबर 2 मैं चेंज करूंगा, कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1। सो कॉलम 1 एज इट इज 1 a cube, column 3 as it is 1 c cube। यहां पर चेंज होगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस a एंड हियर b क्यूब माइनस a क्यूब। आफ्टर दिस मुझे इसको टारगेट बनाना है, इसको जीरो करना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं हाईलाइट भी करता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, एक्सपांशन इजी हो जाएगा। सो कॉलम नंबर 3 चेंजेस टू कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 1। सो कॉलम 1 एज इट इज 1 a क्यूब, कॉलम 2 एज इट इज 0 b minus a b cube minus a cube। Here column 3 minus column 1, 1 minus 1 0, c minus a and it is c cube minus a cube। अब मैं करूंगा एक्सपांडिंग। अच्छा, अब मैं एक्सपांड करूंगा तो मुझे सिर्फ इसी की सपोर्ट की जरूरत है, दिस इनटू ये डिटर्मिनेंट, बिकॉज ये दो तो एनीवे जीरो है, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। सो मैं एक्सपांडिंग करूंगा तो आई विल राइट लाइक दिस 1 into this determinant, b minus a c minus a b cube minus a cube c cube minus a cube, then cross multiply, इधर +0 एनीवे ये दो 0 है, सो नो नीड टू एक्सपांड। सो डायरेक्टली ये हो जाएगा b माइनस a इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब एक रूल याद रखो, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो b माइनस ए इंटू दिस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो वो होता है c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो आई हैव c माइनस ए इंटू दिस b क्यूब माइनस ए क्यूब, वो लिख सकते हो b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। कुछ कॉमन निकल सकता है इसमें, c माइनस ए c माइनस ए b माइनस ए b माइनस ए। सो आई विल टेक b माइनस ए and c minus a
एस कॉमन, तो इसमें से बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, एंड इसमें से बचेगा ये, बट आगे माइनस साइन थी, तो इट इज माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड इट इज माइनस ए स्क्वायर। कुछ कैंसिलेशन होगा? यस, ए स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर नेगेटिव। ओके, सो ये b माइनस ए, सी माइनस ए। अब देखो क्वेश्चन में देखना है कि व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन, और क्या है b माइनस ए, सी माइनस ए के अलावा क्या है। सो लुक हियर, b माइनस ए, ये a माइनस बी चलेगा, साइन में कोई इश्यू नहीं है, c माइनस ए चलेगा। सो व्हाट एक्स्ट्रा इज नीडेड, a माइनस बी ये रहा, c माइनस ए ये रहा, सो b माइनस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। सो इसको हम एक्सपांड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। So I hope you are able to understand, and plus AC minus AB, ये एज इट इज होगा C प्लस बी, C माइनस बी प्लस A कॉमन, C माइनस बी। सो नाउ अब यहां पर आप देख सकते हो C माइनस बी कॉमन होगा, सो B माइनस ए ऑलरेडी था, C माइनस ए, एंड फ्रॉम दिस I can take C माइनस बी कॉमन, तो बचेगा क्या, B प्लस सी प्लस इसमें से क्या बचेगा A। तो बेसिकली ये है A प्लस बी प्लस सी। अब आप सोचोगे सर ये B माइनस ए है, यहां A माइनस बी है, देन C माइनस बी, तो यहां रिवर्स है। सो कोई इश्यू नहीं है, आप इसकी साइन चेंज कर सकते हो, इसमें से और इसमें से -1 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, तो इट विल बिकम A माइनस बी, it will become B minus C, C minus A as it is. So check करो, A minus B, B minus C, C minus A into A plus B plus C, A minus B, B minus C, C minus A into A plus B plus C. So this is exactly equal to right hand side. Okay, so don't take tension. है बोरिंग थोड़ा सा, ये एक्सरसाइज इसलिए मैंने एंड में रखी बिकॉज थोड़ी सी क्या है लेंदी है, बट आई होप एक बार आप प्रैक्टिस करोगे डेली तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो कल हम कंटिन्यू करेंगे। इसके जैसा एक और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करो और वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो। सर कल तो हाँ, मीन्स मंडे को सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ ओके, तो थोड़ा आपको पेशेंस रख के ये एक्सरसाइज को हैंडल करनी है, मेहनत करनी होगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू हैव मास्टरी। ओके, वीडियो एक और बार देख लेना। माइनस आया सर, जो ये सर आ गया ना, एक बाहर आया जैसे, तो सर हाँ, अभी उसका क्या होगा माइनस का? मीन्स ये प्रूव हो गया ना, राइट हैंड साइड ये माइनस हमने कॉमन निकाला, सो b माइनस ए कैन बी रिटन एज a माइनस बी, c माइनस बी कैन बी रिटन एज b माइनस सी, तो बस माइनस माइनस एनीवे प्लस हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ चेंज कर दिया है ये
क्यों चेंज किया? बिकॉज राइट हैंड साइड में ऐसा था। अब क्लियर? ठीक है। ओके, हाँ सर। चलिए बाय बाय।